वरुण जी, आपके पास भी कुछ केसेस आए होंगे, क्या ये अकेलापन की वजह से यंगस्टर इसको यूज कर रहे हैं डेटिंग एप्स को, या फिर थोड़े से प्रेशर के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर इस तरह की एप्स की जो कंपनीज होती हैं जो भी हैं वो ट्रैप करते हैं यंगस्टर्स को? रीजंस क्या है? ये मार्केट इतना बड़ा कैसे होता जा रहा है? आप ये मानिए कि आने वाले 2 से 3 सालों में माना जा रहा है कि इसे यूज करने वाले दुनिया में तकरीबन 44 करोड़ लोग हो जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट कहा जा रहा है अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा, आप सोचिए। और इंडिया में भी ये 5 करोड़ से ज्यादा होने वाले हैं। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। टू आंसर दिस, आप जनरली देखेंगे मार्केट ऑफलाइन टू ऑनलाइन गई है पोस्ट कोविड। सो इट्स मोर ऑफ irrespective of the sector, the consumer behavior has changed. Now that is not specific to this sector, but any kind of goods and services. Having said that, इस specific sector में the government has made as the law also. There was an amendment to the IT Act in 2022, which made all the platforms which are operating as intermediaries, and all dating platforms operate as intermediaries. They are obligated to do KYC of their users, which is know your customers. Now the law is there. It's not that new law is required. Now the implementation of that law is required. So how developed countries have handled this? There are 2 ways to handle this kind of situation. Under law there is a preventive approach. Second is the cure approach. Under the preventive measurement, if such cases are coming, the primary responsibility will lie on the platforms जो ऑपरेट करते हैं। हमारे लॉ फॉर्म में काफी केसेस आ रहे हैं ऐसे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज पावर टू आस्क द प्लेटफॉर्म कि आपने कस्टमर्स की केवाईसी क्यों नहीं की। नाउ आपने केस बोला कि प्रीमियम कस्टमर्स की वेरिफिकेशन होती है, बट नो, they are supposed to do KYC of every user. तो कई जगह क्या होता है, lot of people impersonate कि वो इंडिविजुअल होता भी नहीं है और वो चैट करना शुरू कर देता है, and then they hold that images and chat and blackmail the other user. So first point of case is that the KYC norms are not being executed, and the law provides for both imprisonment and penalties. So therefore I would recommend that police should take cognizance of this, and all the platforms should be sent a notice ki why they are not able to adopt to the KYC norms, because that will promote preventive behavior, and let's hold the platforms accountable because they are earning from the Indian market. Secondly, apart from preventive, because India जैसी बड़ी मार्केट में आप क्योर लेवल पे नहीं आ सकते कि अगर एक इंसिडेंट ऑफ मर्डर हो गया, क्राइम हो गया, तब आ रहे हो। You have to come at the preventive level. So preventive level पे you hold the platforms accountable if they have to operate in India. Second is on the cure side. As per the existing laws, if there is any crime which is committed, the platforms are responsible to support the investigation arms. सारा एविडेंस आपको कोलेक्ट करना पड़ेगा अपने सर्वर्स पे, जो चैट है, जो एविडेंस शेयर हुआ है, उनकी लोकेशंस, एवरीथिंग. So आप कहीं, but currently some of these apps are not, their servers are not based out of India. So therefore investigations agencies का time loss होता है. So therefore at the preventive approach level, the investigations to pull them, that they need to provide that data immediately, and that coordination is required. So this function is of the executive, your Ministry of IT and the police agencies. They need to pull up these platforms because they are earning a lot of money out of this. अब some of these dating apps आप जो बात कर रहे हो, ये unicorns बन चुकी है. Unicorn means evaluation of 6,000 crore plus. So if that is the amount of money they are earning from the Indian market, they better be accountable to the Indian law. And this argument that the law has not been passed is not correct. Law is there, but this has to be executed, and these guys have to be held accountable. So this is the net problem in the current situation, and our law firm RSD Bajaj Global has having various cases from both the sides. But somewhere we are representing the platforms also, and somewhere the end users. So this problem has to be addressed at a policy level.
ओके, ठीक है, इसको हम ब्रेक के बाद भी समझने की कोशिश करेंगे। और पॉलिसी लेवल की बात हुई है तो हम हर पहलू पर समझने की कोशिश करते हैं, और डाटा तो ये कहता है कि जो फ्रॉड के मामले हैं, साइबर क्राइम का जब हम जिक्र करते हैं, और ये साइबर क्राइम में आता है, वरुण जी जरूर इस पर हम बात करेंगे कि देखिए 2020 में 52,974 केस अगर रजिस्टर्ड हुए थे, तो 2021 में 52,000 जैसे मैंने जिक्र किया रजिस्टर्ड होते हैं, और फिर ये बढ़ गया है डाटा, कुछ परसेंट शेयर जो है ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद समझने की कोशिश करेंगे ये डेटिंग एप्स जो हैं, क्या ये सेक्स एप्स बन गई हैं या फिर एक बड़ा बाजार भी। वरुण जी, क्योंकि आपने पॉलिसी का जिक्र किया था और आप रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं, आप सेटिस्फाई हैं इस आंसर से जो भी नेहा जी ने दिया। मैं इस बात का तो स्वागत करती हूँ जो नेहा जी ने कहा कि हमें इस पर काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, मॉनिटरिंग वाले लेवल पे शायद फेलियर हो रहा है। मैं 100% नहीं बोलूंगी, लेकिन काफी हद तक। आप म्यूट तो नहीं है, प्लीज देखिए एक बार। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। सो आपने एब्सोल्युटली ठीक बोला दैट इंटेलिजेंस के बिना कोई भी स्टेट गवर्नेंस ऑपरेट नहीं कर सकती। But in this case, apart from the policy changes which are required, which इसमें ज्यादा जरूरी क्या है कि इसमें एग्जीक्यूशन लैग कर रही है। एंड एग्जीक्यूशन आपने जैसे बोला कि आज की डेट में आप ट्रेंड एनालाइज करिए तो लीगल केसेस बढ़ रहे हैं। लीगल केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? इसका मतलब केस ज्यादा फाइल हो रहे हैं और डिस्पोज ऑफ कम हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपका जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का, और जो स्टेट गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इट इज नॉट केटरिंग टू द रिक्वायरमेंट। In a way, your demand is more and your supply is less. So जो main investigation officer है या जो cyber crime infrastructure है, they are focused on high crime items and they don't have the bandwidth to look into ये volume cases जो आ रहे हैं. So therefore it is not कि सिर्फ law बना दिया. Law तो already मैं as I'm saying आज की डेट में IT Act और अगर आप उसके रूल्स पढ़िए तो ये लीगल लायबिलिटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और इंडिविजुअल यूजर्स दोनों के पास आती है। बट पुलिस के पास और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास इसकी बैंडविड्थ की लिमिटेशन आ रही है। दैट इज व्हाई वो केसेस आर पाइलिंग अप और वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहे। और हमारे जहां कहते हैं दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो इफ जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देन इफ यू गेट दिस जस्टिस अराउंड 6 to 12 months डेट द लाइन आल्सो, वो इट इज नॉट बिकम वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी एफिकेशियस, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम। मैं एक चीज और आपसे समझना चाहती हूँ, हमारा सिनेमा कितना रिस्पॉन्सिबल है? हमारा सिनेमा देखिए, इस स्पेसिफिक अगर मैं श्रद्धा के केस की बात करूं, अमेरिकन वेब सीरीज देखी थी आफ्ताब ने, जहां से उसे इस मर्डर का आइडिया मिला, ठीक है, उसके बाद उसके पार्ट्स और वो सारी चीजें। हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह की, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सभी खराब है, पर न्यूडिटी तो है, परोसी जा रही है। वो भी क्या यंगस्टर्स को अप्रोच करती है, उनका इजी अवेलेबल हो जाना, पॉन्स का इजी, एक क्लिक पर पॉन आपके सामने है, वो एक बड़ा कारण है क्या? और देखिए कितने सारे गैंग्स हैं जो फीमेल को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पैसे भी ऐंठते हैं और फिर मर्डर भी होते हैं। तो भी घूम फिरकर तो सारी मॉनिटरिंग वाली पॉइंट पर ही हम आके फंस जाते हैं ना सर, ट्रैप हो जाते हैं हम। और बहुत लोग रजिस्टर्ड करा पाते हैं केस, कुछ शर्म के मारे खुद में ही दफन कर लेते हैं, बोल ही नहीं पाते। एब्सोल्युटली नहीं, इसमें एक और मॉनिटरिंग के अलावा ये जो आपने अभी पॉइंट बोला है, इसमें एक पॉलिसी बड़ा मेजर गैप मैं आपको बताता हूँ। द लॉ जो एप्लीकेबल है टेलीविजन पे, जैसे आप पे एप्लीकेबल है कंटेंट पे, वो सेम गाइडलाइंस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं एप्लीकेबल। सो देयरफॉर जो डिसिप्लिन एक टीवी को फॉलो करना पड़ता है, वो ओटीटी को नहीं फॉलो करना पड़ता। एंड सेकेंडली, जो आप पॉर्न टेक्निकली बाय लॉ इज बैंड इन इंडिया एज ऑन डेट। बट मैं आपको बता रहा हूं हमारे पास कितने केसेस आते हैं। देयर इज ए टेक्निकल सर्विस नोन एज वीपीएन। वीपीएन से अगर आप अपना आईपी बदल लीजिए तो आपका कंट्री इंडिया से लेकर बाहर चला जाता है किसी और ज्यूरिसडिक्शन पे, और उसके हिसाब से यू कैन एक्सेस दो साइट्स। इट इज कॉमन नॉलेज इन ऑल केसेस जो हमें आ रहे हैं। एंड गवर्नमेंट, टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट हैज पास्ड ए रेगुलेशन जहां वीपीएन भी बैन करने के लिए उन्होंने बोला है, बिकॉज उनको इंटेलिजेंस आई है। बट वो स्टिल एनफोर्सेबल नहीं है। आज की डेट पे आप किसी भी ऐप स्टोर पे चली जाइए, आप 200 रुपए में एक वीपीएन सर्विस ले सकते हैं और जो साइट्स इंडिया में बैंड है आप ऑपरेट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल लीगल केसेस कमिंग टू अस। सो देयरफॉर जो पॉलिसी लेवल पे आप टेलीविजन पे थ्रेशोल्ड लगा रहे हैं न्यूडिटी का, आपको वही मापदंड
ओटीटी पे लगाना चाहिए और वीपीएन बैन करना चाहिए। अदरवाइज आप मेन मीडिया पे भी अलाउ करिए। अगर आप उसमें मानते हैं कि वो न्यूडिटी एक लेवल पे है, तो व्हाई आर यू स्टॉपिंग दैट एट टेलीविजन एंड अलाउइंग एट ओटीटी? आप पॉलिसी कंसिस्टेंट रखिए। अगर आप उसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे, तो उसकी वहां पे आपको इनोवेशन चाहिए ऑन द स्पेसिफिक कॉज। और मैं आपसे एब्सोल्युटली एग्री करता हूं दैट दिस इनिशिएट्स एग्रेसिव बिहेवियर बिकॉज दिस इज एन आइसोलेशन। सो अगर लॉ ऑफ द लैंड सेज कि मीडिया में न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, सो इट शुड बी एप्लीकेबल टू ओटीटी एंड VPN services should be enforced to stop. Then everybody is playing by the same rule book for all the platforms. So ये आज की डेट में लैक्यूना रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ काम सिर्फ पॉलिसी लेवल पे तो मल्टीपल लेवल्स पे करना पड़ेगा, बट आपको उसकी एग्जीक्यूशन देखनी वो ज्यादा जरूरी है। ठीक, आपने अच्छी बात कही। और भी सोल्यूशंस आपके पास हो तो प्लीज आप सोच के रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगी तो जरूर बताइएगा। वरुण बजाज जी, हम इस मकड़ जाल से अपने बच्चों को, अपने जानने वालों को, अपनी यंग जनरेशन को कैसे निकालें, जबकि हम ये जानते हैं कि भारत ही वो देश है जिसके पास सबसे ज्यादा नौजवान है। हम सबसे नौजवान देश हैं उस सूरत में। एब्सोल्युटली, मैं आपको थोड़ी गाइडेंस, मुझे थोड़ा सा इस इशू में ना, आपने एक मैम ने भी अभी बोला है, लीगल अवेयरनेस का गैप भी ह्यूज है। पीपल आर नॉट अवेयर कि उनके कानूनी हक क्या है। मैं तभी आपको समरी में 3-4 सोल्यूशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर दी। तो अगर आप, जैसे मैंने बोला है, डेटिंग ऐप पे किसी को भी कंप्लेंट होती है बाय लॉ, एंड दिस इज द IT एक्ट इंडिया का मैं कोट कर रहा हूँ, हर एक डेटिंग ऐप को एक ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना होता है, जो कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में अपलोडेड होता है बाय लॉ। तो आप इमीडिएटली एक कंप्लेंट ईमेल भी डाल दीजिए सिंपल टू द ग्रीवियंस ऑफिसर। उनको वो ग्रीवियंस विद इन ए टाइम फ्रेम मैनर उनको एड्रेस करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तो अपील फाइल कर सकते हैं यहाँ फर्दर, एंड इफ दे आर नॉट डूइंग इट तो द रेगुलेटर उनपे पेनल्टी लगा सकता है। तो लॉट ऑफ पीपल फील कि कंप्लेंट फाइल करना मतलब थाने जाना है या पुलिस में FIR करना है, और वो काफी लोगों को हेजिटेशन हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। आप एक सिंपल ईमेल भी डालेंगे टू द ग्रीवियंस ऑफिसर, दे आर बाउंड टू एक्ट बाय। सेकेंडली, अगर बाय चांस आपको FIR भी लॉन्च करानी हुई, मैं सेकंड आपको एक लीगल राइट अवेयर करवा रहा हूं, आपको आज की डेट पे थाने जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सरकार ने पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है दैट आप सीधा एक कंप्लेंट फाइल करें ऑन द सेंट्रल पुलिस पोर्टल। रेलेवेंट SHO, रेलेवेंट थाने के हिसाब से वो कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाती है टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और वो उसको इवैल्यूएट करके FIR प्रोसेस लॉन्च कर लेता है। सो एक्चुअली एज ए सिटीजन यू डोंट नीड टू गो, आपको अपने घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है टू फाइल ए कंप्लेंट। ये व्यवस्था आ चुकी है, बट लॉट ऑफ एंड यूजर्स या जो कस्टमर्स हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, या एडवाइजर्स आर ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट, जैसे मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स अगर वो बताएं। तो अगर आप कंप्लेंट करें, मेरा ये मानना है, कानून पे विश्वास रखिए, इंडियन व्यवस्था एनफोर्समेंट की चाहे डिले हो, पर दे आर वेरी पर्टिकुलर। आप अगर साइबर सेल भी कंप्लेंट डायल करें, आपको थोड़ा डिले हो सकता है लॉ की वजह से, पर ये नहीं हो सकता कि जस्टिस डिनाई हो जाएगा। सेकेंडली, व्हाट वी कॉल इन एनफोर्समेंट, एक इमीडिएट सर्कल होता है। लॉ पुलिस तो बाद में आती है क्राइम सीन में, या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो बाद में आता है। आपका इमीडिएट सर्कल इज हूम? इमीडिएट सर्कल आप खुद हैं और आपकी फैमिली है। सो आपको इस एज में जहां इमीडिएट आपका रिकोर्स इज योर फैमिली, तो आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चों और अपने को पार्टनर्स का मेंटल हेल्थ जानना पड़ेगा रोज के रोज। और वो क्या मैं आपको कहीं बताता हूँ, कहीं हमारे लॉ फर्म में केसेस आए हैं, बहुत शॉर्ट में सर, मुझे वाइंड अप करना होगा, बहुत लास्ट टाइम कंक्लूडिंग द लास्ट लॉट, कई केसेस फीमेल्स के अगेंस्ट आए हैं दैट यूजर्स हैव चैटेड, और वो टेक्स्ट उनके अगेंस्ट उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं टेक्स्ट के अगेंस्ट। अब वो उनको कंप्लेंट फाइल करने में भी डर लग रहा है एसेंशियली। अब इस केस में आपका ओनली रिकोर्स इज इमीडिएटली फैमिली, मतलब लॉयर भी बाद में आता है। वो इमीडिएटली अगर फादर मदर या ब्रदर को बता पाए वो कंफर्ट कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। कई बार हमने क्या देखा है, फीमेल्स को ब्लैकमेल करके उनको एक जगह पे बुलाया जाता है, तो वो क्राइम, फिर जब क्राइम हो जाता है दैट इज वेरी लेट। एंड आपको क्या करना है एट दैट स्टेज, इफ यू कैन टॉक टू योर फादर मदर या कजन्स या ब्रदर्स, यू विल इमीडिएटली गेट ए रिकोर्स कि इसको कैसे हैंडल करना है, बिकॉज इट्स ऑलवेज नॉट ए लीगल इशू, एट टाइम्स इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू आल्सो। सो ये मैं इमीडिएटली रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये सेफगार्ड्स करिए तो यू कैन सी थ्रू दिस पीरियड ऑन दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय था जिस पर हमने चर्चा की, आप लोग जुड़े, बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय निकाला इस विषय पर।